پر جانے سے لے کر 40 سال فرسٹ 40 ایئرس جو ہیں 30 ایئرس سے لے کر کس سال تک کو کس ایرا کو 90. تو یہ رسولی دور ہے, اپسٹولک دور ہے, فرسٹ سینچری چل رہی ہے. افسس کی کلیسیا تعریف کیا ہے جی؟ نمبر 1, میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر کیا کرتا ہوں جی؟ آئی نو. یہ جو بات ہے نا خداوند یسوع مسیح کے آئی نو, یہ بعض اوقات لوگوں کو ڈرا دیتی ہے. کسی کی پرائیویٹ ویڈیو لیک ہو جائے, کسی کے پرائیویٹ میسیجز لیک ہو جائیں, ٹھیک ہے, لوگ کی ہو جانے پریشان ہو جانے کہ یار شرم کی بات ہے. سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہتی ہیں, سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا شیم اینڈ آنر کے اندر کہ جی میری انفارمیشن, میری لائف پبلک کے سامنے نہیں جانی چاہیے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تیرے سارے کاموں کو کیا کرتا ہوں, جانتا ہوں, ٹھیک ہے جی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کلیسیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہر انسان کی لائف سے خداوند یسوع مسیح کیا ہے, وہ واقف ہیں. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ جی اس کو پتہ نہیں چلے گا, اس کو پتہ نہیں چلے گا, اس کو پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کہانی یسوع مسیح کے سامنے نہیں چلتی. ہی نوز. نہ صرف وہ ہمارے کام جانتے ہیں, مشقت بھی جانتے ہیں اور صبر بھی جانتے ہیں, اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں نہیں, ٹائٹلز بنائے ہوئے ہیں, خدمت کوئی نہیں ہے, کالنگ نہیں ہے, صرف ٹائٹلز ہیں, صرف اپنے ساتھ پیچھے عہدے ہیں, اور ان عہدوں کے پیچھے بھاگنے کے چکروں میں they are calling themselves apostles, leaders, بھیجے ہوئے, لیکن وہ بھیجے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ فرق ہے اتھینٹسٹی میں, رسولی خدمت کے اندر, اور اپنے آپ کو سیلف میڈ, سیلف پروکلیم جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے درمیان. تو یہ کلیسیا جو ہے یہ رسولی دور کی ہے, اس لیے یہ بڑی مضبوط جگہ پر کھڑی ہوئی ہے, اور ان کی تعلیم they are doctrinally sound church, کیونکہ یہ وہ ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ کھایا پیا, اٹھا بیٹھا, اس کی سلیپ کو دیکھا, اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو دیکھا, اس کے معجزوں کو دیکھا, اس کے جلال کو دیکھا ہے, اور چونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, پرسنل ریلیشن شپ ہے یسوع مسیح کے ساتھ, اس لیے they have discernment کہ جھوٹا بندہ کون ہے اور ڈرامے باز کڑا ہے, اصلی پادری کڑا ہے, مداری کڑا ہے. They know the difference between the circus and the church. So یہ کلیسیا کی تعریف کی گئی ہے, ٹھیک ہے جی. دوسری سمرنا کی کلیسیا کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ 9ویں آیت, میں تیری مصیبت اور غریبی دونوں کو کیا ہے, جانتا ہوں. That's very important جی, کیونکہ سمرنا کی کلیسیا واحد 7 خطوط کے اندر کلیسیا ہے جس کو یسوع مسیح کو اس کلیسیا سے کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی کرٹیک نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ this church is a suffering church, persecuted church ہے. یہ مصیبت میں ہے اور غریب ہے, لیکن کیا ہے, مگر تو دولت مند ہے. اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے, ان کو بھی اور ان کے لان تان کو بھی جان. جو لوگ تیرے خلاف ہیں, تو جو مشکل حالات میں رہتا ہے, تیرے اڑوس پڑوس کے لوگ تجھے پسند نہیں کرتے, تیری پراپرٹی پہ قبضہ ہوتا ہے, تمہاری بہو بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, زبردستی کنورٹ کر دیتے ہیں, تمہیں نوکری نہیں ملتی ہیں, تمہیں غریب رکھا جاتا ہے سسٹمیٹکلی. سو میں تیری مصیبت کو بھی جانتا ہوں, تیری پرسیکیوشن کو بھی جانتا ہوں, اور تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کی اس بات سے واقف ہیں, بلکہ شیطان کی جماعت. آگے کلیسیا کے ایک اور کہا گیا ہے, تو شیطان جہاں رہتا ہے وہاں رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان کا جو دوسرا مطلب ہے بائبل مقدس میں وہ کیا ہے؟ کسی کو شیطان کا دوسرا مطلب پتہ ہے کیا ہے جو بائبل مقدس میں دیا گیا ہے؟ کوئی تکا, کوئی تیر نہیں, الزام لگانے والا, ٹھیک ہے نا. کیا نام ہے اس کا دوسرا؟ الزام لگانے والا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک اور ٹائٹل دیا شیطان کو, اور وہ پتہ کیا ہے؟ The father of the lies. پنجابی چ کہنے لگا جھوٹیاں دا پیو, جھوٹوں کا باپ. یہ بھی ٹائٹل یہ کس نے دیا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے, ٹھیک ہے. تو جو شخص آپ کے سامنے کلیسیا کا ممبر ہوتے ہوئے ادھر دا ڈیٹا ادھر دا ڈیٹا ادھر کرے, اس کے کان اس کے خلاف بھرے, اس کے خلاف اس کے خلاف بھرے, اس کا الزام ادھر دھر دے, اس کا الزام ادھر دھر دے, اٹ مینس کہ یو آر ڈیلنگ ود اے سیٹن, الزام لگانے والا, اور جھوٹوں کے پاپ سے ڈیل کر رہے ہیں آپ. اٹس اے اسپرچل وارفیئر, روحانی جنگ میں آپ شامل ہیں. سو یہ
इनकी तारीफ की गई है। तीसरी कलीसिया को क्या कहा गया है? 13वीं आयत दूसरे बाब की, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। ओहो, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो राइट इन द मिड्स ऑफ द सैतानिक दुनिया के अंदर रहते हैं। जादू टोना बेदीनी खुदा के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, कलीसिया में इत्मीनान नहीं है, वो लोग इसमें मौजूद हैं जी। 18वीं आयत 19वीं आयत दूसरे बाब की, इस कलीसिया को, थुआतीरा की कलीसिया को क्या कमेंट किया गया है? मैं तेरे कामों, वर्क्स और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र, कितनी चीजें हैं जी? 5 चीजें हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह क्या है जानते हैं। आपको अगर आप पहला करंथियों 15वें बाब की 58 आयत पढ़ेंगे, फर्स्ट करंथियन, ये हवाला नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसको अपने फ्रिज पर लिखकर लगा दें, दरवाजों पर लगा दें। अगर आप किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं अपनी खिदमत के बारे में, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में, तो ये आयत आपको बहुत ज्यादा इंकरेज करेगी। फर्स्ट करंथियन 15वां बाब और उसकी 58 आयत आखिरी आयत है, और वहां लिखा है कि बस खुदावंद के काम में क्या करते रहो? अफजाइश करते रहो। अफजाइश, मल्टीप्लाइड। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। पादी साहबान के लिए भी मैं यही कहूंगा कि बाज़ औक़ात हम बहुत डिसहार्ट होते हैं कलीसियाओं से, कलीसियाओं के रवैयों से, लोगों से, मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इंकरेजमेंट क्या है? चाहे आपको क्रेडिट मिले या ना मिले, आपकी तारीफ हो या ना हो जमीन पर, आपको कमेंडेशन मिले या ना मिले, ये बात याद रखिएगा कि जो कलीसिया का असल मालिक है, जो कलीसिया का सर है, वो जरूर आपकी खिदमत से क्या है? वाकिफ है। आपकी मेहनत, आपके सब्र, आपके ईमान और खिदमत को वो क्या करता है? वो जानता है। थुआतीरा की कलीसिया को कहा गया है जी, सरदीस की कलीसिया, तीसरे बाब की पहली आयत, वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को, एक काम नहीं, किसको? मल्टीपल कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। लो जी, ये रयाकारी को क्या कर दिया गया है? एक्सपोज किया गया है। मसरूफियत बड़ी, मैंने स्टोरी याद आ गई है। वो जी किसी जंगल है ना, इलेक्शन, अभी अमेरिका का इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जी, मैं अमेरिकन दोस्तों को जो वॉच करेंगे बाद में, कांग्रेट्स, हमें अमेरिका की क्रॉस लाए आज। जंगल में इलेक्शन हो गए, कैंडिडेट आ गए सारे। उन कैंडिडेट में शेर, चीता, नाल एक बांदर भी आ गया, ठीक है। बांदर कहता जी मैनू भी बादशाह बनाओ, मैनू भी बादशाह बनाओ। लोगों ने कहा यार शेर तो है ही बादशाह, ऐदकी तरह थोड़ा जहा माहौल क्या करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं, चलो बांदर को की कर लेने हैं, बाल लो जी बांदर को वोट मिल के बांदर बादशाह, ठीक है। अच्छा जी, अब बांदर बादशाह बनया तो वो टपोसियां ना मुकन, कभी एक दरख्त उधर, दूजे इधर छाल मारी, उधर छाल मारी, उधर पब्लिक बड़ी परेशान, चले बांदर को की हो गया भाई। एक दिन जंगल में आग लग गई। जंगल में क्या लग गई जी? क्राइसिस आ गया, आग लग गई। आग लग गई तो जनाब सारे जानवर को उधर दौड़ रहे जान बचाने के लिए। कुछ लोग भागे भागे कहाँ गए? बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बचाओ बचाओ, कोई हाल दसो की करिए, आग लग गई है, जानवर मरन रहे हैं, बच्चों वास्ते कोई जगह नहीं, की करिए? बादशाह सलामत ने भगो भगो जरा हमने करने कुछ। बादशाह सलामत छाल मारी, पुछल तो लटक के दूजे दरख्त उत्ते गया, उत्ते परिंदे शोर पान, बादशाह सलामत ये जंगल जल रहा है, जंगल जल रहा है जी, दरख्त जल रहे हैं। बादशाह सलामत का तुम भी बहुत आराम नाल, बादशाह सलामत उतों छाल मारी तीजे दरख्त, उतों होर शोर थले आके बह गया, उत्थे होर जान, बादशाह सलामत कदी वो दरख्त, कदी वो दरख्त, वो दरख्त। लोगों ने क्या बादशाह सलामत तुहानू कहन दिया जान बचाओ, अग लग गई, एडा वड्डा क्राइसिस हो गया, की करा? आंदा है अग तो लगी है, क्राइसिस भी है वे, सारा कुछ है वे, पर तुम मेरिया आउणियां वेखो तो मेरिया जानियां वेखो। तो ये भी लीडरशिप का करैक्टर है। क्राइसिस जितने मर्जी हो, जो मर्जी हो, ठीक है ना। तो जिस शाख पे क्या कहते हैं जी, वो एक शेर है ना उर्दू का कि जी हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां खुदा जाने। तो जब लीडरशिप करप्ट लोगों के हाथ में हो, नॉन कॉल्ड लोगों के हाथ में हो, और एक्टिविटीज बहुत ज्यादा दिखाई जा रही हों, तो ये कहानी याद रखेगा, अग लगी है लगी रहन दो, साड़ियां की वेखो, तुम आउणियां वेखो तो जानियां वेखो बस। तू क्या कहा इस कलीसिया को? तू कहलाता अपने आप को क्या है? जिंदा है, लेकिन तू है क्या असल में?
मुर्दा। तो ये ही नोस, वो मेरी रियाकारी को भी जानता है, मैं लोगों के सामने किन्ने हालो लिया मार के हाथ खड़े करना, मेरी प्राइवेट लाइफ क्या है और मेरी पब्लिक लाइफ क्या है, ही नोस। सो फिलडेल्फिया तारीफ की गई है जी, मैं तेरे कामों को जानता हूं। अगेन तो यीशु मसीह सारी कलीसिया के कामों को क्या करते हैं जी, जानते हैं। देख मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है जी। ओके जी, सो ये हो गई जी सातों कलीसियाओं की क्या हो गई, कमेंडेशन हो गई, तारीफ हो गई। ठीक है, कामों को भी, मुसीबत को भी, सब्र को भी, मुसीबत को भी, रियाकारी को भी, झूठी रूहानियत को भी, सबको खुदावंद यीशु मसीह अंदरों बाहर क्या करते हैं, वो जानते हैं। ठीक है, नाउ कम टू जी मोस्ट फेवरेट पार्ट, और वो क्या है, कौन बोलो, क्रिटिक। हूं नुक्ताचीनी की वारी आई है जी। हाँ नहीं तो सुनिया उधर की हो गया, अब तेन पता लगा, पारी साहब ने शाम को फोन हो गया, पारी साहब पता लगा फलाने पादरी के घर की हो गया, वो फलानी कलीसिया की हो गया। यानी बैक बाइटिंग और एक दूसरे की बुराइयां और क्रिटिक क्या हो गई, अब कलीसिया शुरू में हो जाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब क्रिटिक करते हैं, हाउ ही इज क्रिटिकिंग, और अगर इस क्रिटिक में कलीसिया पाकिस्तान को वेदर ऑनलाइन, इन पर्सन या रिकॉर्डिंग जो भी सुनेंगे बाद में भी, अगर आपको अपनी इसमें आईना नजर आए, जॉन कैल्विन ने कहा था जी कि गॉड्स वर्ड इज अ मिरर ऑफ द सोल, ये हमारी रूह का क्या है, आईना है, ये सेल्फी है, वी आर सेल्फी जनरेशन ना। ठीक है, तो खुदा का कलाम क्या है, ये हमारी क्या है, ये सेल्फी है, ये दिखाता है असल में कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। तो ये सेल्फी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब ये सेल्फी मुझे दिखा रहे हैं मेरी इस कलीसिया के वसीले से, तो वेयर आई एम स्टैंडिंग, नॉट ओनली एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, बट एज अ होल चर्च, एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके जी, पहली क्रिटिक, चौथी आयत दूसरे बाप की, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। अच्छा जी, शिकायत या गिला अपने नाल किया जाता है कि बेगानियां नाल, क्या ख्याल है, किससे किया जाता है, बरादरी च किया ना, जात बरादरी शरीका से कहना, शरीका पंजाबियों का शरीका होंगे ना। अच्छा, शरीका कंपटीशन है, असल में शरीका क्या है, ये कंपटीशन है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਘਰ 2 कमरिਆਂ ਦਾ ਘਰ है, तो मैं किन्ने ਦਾ ਲੈਣਾ, 4 ਦਾ। ਉਹਨਾਂ को 2012 ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ i4 ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਕਿਹੜਾ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, नहीं 7 तो बहुत पिछे चला गया, तो ਹੁਣ तो प्रो तो अगे 16 तो पता नहीं की शामा आ गई ने। ठीक है, तो कंपटीशन क्या है, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये जो शिकायत है खुदावंद यीशु मसीह की, वो क्या है जी, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। फैज अहमद फैज का नाम किसने सुना है, फैज अहमद फैज। ठीक है जी, बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं हमारे पाकिस्तान के, उनकी गजल मैडम नूर जहां ने गाई और वो बड़ी मशहूर है, किसी को याद है जी, हाँ 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 पारी साहब क्या बात है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। कितने लोगों को पता है फैज अहमद की फैज वाइफ एलिस वाज अ क्रिश्चियन। ठीक है जी, एंड ही लिव्ड इन लंदन, इंग्लैंड से। तो फैज अहमद फैज की शायरी में और बहुत सारे लोगों की जो आपको पाकिस्तान के शायरा मिलेंगे, आपको उनमें बाइबल मुकद्दस के थीम बड़ी कसरत से नजर आएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, इट इज रेफर टू दैट पोइट्री, दैट गजल कि मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है, छोड़ दी है। गुमाई नहीं है, गुमी नहीं है, लॉस नहीं हुई है, क्या हुआ है, यू लेफ्ट इट, तूने छोड़ दी है। सो ये इस कलीसिया के साथ शिकवा है खुदावंद यीशु मसीह का भी। ठीक है, लवलेस चर्च है ये। कौन सा चर्च है ये, इसके अंदर मोहब्बत की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है जी, दूसरे चर्च को क्या कहा गया है, जैसे मैंने पहले बताया है, स्मुरना की कलीसियाओं के साथ यीशु मसीह को कोई शिकवा नहीं है। 7 कलीसियाओं में वाहिद चर्च है, कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं है। वाई, सफरिंग एंड पुअर, पॉवर्टी एंड सफरिंग। तीसरी कलीसिया परगमन,
यहां पर एक नहीं चंद बातों की शिकायत है। 14वीं आयत क्या लिखा हुआ है? लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, हरामकारी और झूठी तालीम। बलाम की स्टोरी किसी को याद है? बलक बिन फगूर ने जब बनी इसराइल बियाबान से आ रहे थे, उसने बलाम को जिदी खोती बोल पई सी, स्टोरी सुनी है कि नहीं है? बलाम, ये वो बलाम वही है। 3 बार ट्राई की इसने, कुर्बानियां चढ़ा करके मैं बनी इसराइल पर लानत कर दूं, इनको किर्स कर दूं, इनके खिलाफ जादू टोना और काला जादू, ब्लैक मैजिक, पता नहीं केड़ा केड़ा मैजिक मैं इनके खिलाफ क्या कर दूं, इस्तेमाल कर दूं। हर बार बजाय लानत निकलने के उसके मुंह से क्या निकलती थी? बरकत। तो खुदा उसने कहा जी, उसने बलक बिन फकूर को कहा, ये वो कौम है ना इन पर जादू असर करता है, ना इन पर टोना असर करता है, ना कुछ भी नहीं चलता। इनको बाहर से अटैक करोगे ये और ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। इनको कॉन्कर करने की बजाय इनको अंदर से करप्ट कर दो। बाहर से हमला नहीं करोगे तो ये मजबूत होंगे, खुदा इनके खिलाफ कोई काम नहीं चलने देगा। इनको अंदर से क्या करो? इनको करप्ट कर दो, इनको मॉरली करप्ट कर दो, इनको एथिकली करप्ट कर दो, इनको फाइनेंशियली करप्ट कर दो। ये लोगों के सामने खड़े ना हो सके, खुदा के सामने दिलेरी के साथ ना आ सके। और तुम कैसे कर सकते हो? क्योंकि फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर खुदा खुद इनको सीधा करेगा। तो उसने कहा जी, तुम गैर कौमों की लड़कियां लाकर इनकी शादियां करवाओ और इनसे हरामकारी करवाओ, इनको गैर कौमों के खाने खिलाओ, उनके पार्टियों में जाने दो और इनके साथ ही मेल मिलाप रखें, एंड दैट्स हाउ दे विल करप्ट। और फिर खुदा यकीनन डंडा कहा फेरगा। ये तालीम उसने दी एंड इट वर्कड। तो ये बलाम है जी। तो ये कलीसिया क्या कर रही है? शिकायत क्या है कि ये कलीसिया अपने अंदर हरामकारी होने के बाद, पता है फलां बंदा, फलां फैमिली, फलां खानदान कैसा है, लेकिन कलीसिया कम होने के डर से, चंदा कम होने के डर से, या कलीसिया का रेपुटेशन डर होने के डर से, कलीसिया या पासबान या बिशप या पादरी या चेयरमैन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। ये वो चर्च है। इससे शिकायत है यीशु मसीह को चंद बातों की। थुआतीरा की कलीसिया से क्या शिकायत है? पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस 20वीं आयत पढ़ना हो जी, दूसरे बाप की, तूने उस औरत एजबल को रहने दिया है। एजबल की स्टोरी याद है ना? किसकी बीवी थी? अखी बादशाह की, ठीक है। और ये किस दौर में बर्पा हुई? इसके खिलाफ खुदा ने पता है कौन सा नबी खड़ा किया था? एलिया तिशबी, दलेर आदमी। इतनी बड़ी बड़ी कुंजियां, इतनी बड़ी बड़ी पावर उसके पास है। खुदा कहता है तू दुआ कर, फरमाएगा, तू कहेगा आसमान 3.5 साल के लिए मैं क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। तू कहेगा तो आसमान क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। इतना पावरफुल आदमी। ना सिर्फ पानी को वो कंट्रोल कर रहा है आसमान से, बल्कि उसके पास आग को खोलने की भी क्या है? कुंजी है। 450 नबियों के साथ कोहे किरमल पर उसका एनकाउंटर होता है और वो आसमान से दुआ करता है और आग नाज़िल होती है, लकड़ियां, पत्थर, कुर्बानी सब भस्म। इतना पावरफुल आदमी, इतना पावरफुल नबी है, लेकिन डिप्रेशन का शिकार हो गया। और डिप्रेशन किस वजह से आया? अभी भी एजबल लै दे गई। एजबल से डर के भाग गया और कहता खुदावंदा यहां तो मैंने मार दे, आप बीबी ने तुमने बचाना है। इतना डिप्रेशन में आ गया। अंदाजा करें कि कई बार बड़े बड़े सूरमा किस्म के लोग भी, भैनों अपनी पावर देखिए। मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूं, मैं एजबल के अंदाज में नहीं कह रहा, ठीक है। द पावर न्यू चर्च नए अहदनामे की कलीसिया औरतों की वजह से खड़ी हुई है। वुमेन्स वर द अपोस्टल्स टू द अपोस्टल्स। शागिर्द इधर उधर निकल गए हैं, बागे कसम नहीं, जो गायब हो गए हैं। यीशु मसीह के साथ साथ सलीब तक कौन गई हैं? औरतें गई हैं। यीशु मसीह को सलीब से उतारते वक्त कौन खड़ी हुई हैं? औरतें खड़ी हुई हैं। सुबह कब्र पर कौन गई हैं? औरतें गई हैं। शागिर्दों को जाकर किसने बताया मुर्दों में से जी उठा है? औरतें गई हैं। अपने लिए तालियां बजाओ जरा जोरदार। वंडरफुल। सो कहां पहुंचे जी हम लोग? हाँ, एजबल। ये कलीसिया के अंदर भी प्रॉब्लम है। और गुनाह कौन सा इस कलीसिया के अंदर? तूने एक तरफ बलाम, पीछे वाली कलीसिया, सेम टैक्टिक्स, ठीक है, सेम टैक्टिक, हरामकारी, बुत परस्ती और मॉरली करप्ट। ये तीनों हमेशा इब्लीस की, ये तीनों रहेंगे जी, हर दौर में रहेंगे।
3 टेक्निक रहेंगी प्लीज की। क्या? नंबर 1, झूठी तालीम, खुदा के कलाम को क्या कर देना, तोड़ के पेश कर देना, झूठी तालीम हमेशा। नंबर 2, हरामकारी, और नंबर 3, मॉरली करप्ट। ये 3 हमेशा रहेंगे। ये भी क्या कर रही है औरत, अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर क्या करती है, और मेंबर के दिए, चर्च दी, ना सिर्फ मेंबर है चर्च की बल्कि ऊपर से लीडर भी है। अपने आप को क्या कहती है, नबिया, प्रॉफिटेस। टाइटल तो ले लिया है लेकिन लोगों को क्या कर रही है, गुमराह। द स्पिरिट ऑफ एजबल जो है ये काम कर रही है। तीसरे बाब की दूसरी आयत, सरदीस की कलीसिया, दूसरा बाब, जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी क्या कर, कम मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। शुरू तो कर लिया पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए खुदा के नजदीक, खुदा के साथ, क्योंकि पर्सनल प्रोजेक्ट है, पर्सनल एडिफिकेशन है। खुदा से पूछा नहीं है, खुदा से के साथ मिलकर काम नहीं हो रहा, बल्कि अपना प्लान बनाकर खुदा का खुदावन साइन कर दे, मैं कम करने चला। पूछा नहीं है करूं या ना करूं, बल्कि अपना प्लान बनाकर खुदा से क्या कहा, उस पर क्या लगा दे, खुदावन स्टैंप लगा दे, काम हो जाएगा। फिलडेल्फिया की कलीसिया को क्या कहा गया जी, चूंकि इसको कहा गया है जी, लौदीकिया की कलीसिया, द चर्च विद द ल्यूकवार्म। ये कलीसिया क्या हो गई है जी, ये ना सर्द है और ना गर्म है। इस कलीसिया को खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो क्रिटिक करते हैं, यहां तो सर्द हो जा और यहां क्या हो जा, गर्म हो जा। गो फॉर और गो विद, ये दरमियान की राह जो है ना, ग्रे एरिया, ये ठीक नहीं है। डिप्लोमेटिक नहीं बनना कलीसिया को, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, ये तालीम है मसीह की, ठीक है जी। ओके जी, नाउ सेकंड लास्ट पॉइंट, क्रिटिक सुन लिया आपने जी। पहले हमने क्या देखा, तारुफ यीशु मसीह का, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखा है, कमेंडेशन है, फिर क्या है, क्रिटिक है। अब आते हैं कि मुझे और आपको खुदावन यीशु मसीह कमांड क्या देते हैं, इससे बाहर कैसे, रिवाइव कैसे हो, हमारे अंदर बेदारी कैसे आएगी, हमारे अंदर जो है रिजुविनेशन कैसे आएगी, हम बहाल कैसे होंगे। जैसे ज़बूर नबी में पढ़ते हैं, खुदावंद अपना चेहरा चमका तो हम क्या हो जाएंगे, हम बहाल हो जाएंगे। तो खुदा का चेहरा जो है वो कैसे चमकता है, थ्रू गॉड्स वर्ड, खुदा के कलाम के वसीले से। खुदा अपने चेहरे का नूर हम पर क्या करता है, जाहिर करता है, उसकी लाइट हमारे चेहरे पर आती है। दैट इज हाउ वी रिवाइव आवरसेल्फ। सो जी, कमांड इफिसस की कलीसिया को, दूसरे बाब की 5वीं 6ठी आयत, 3R है, रिमेंबर, याद कर। क्या कर, याद कर। तो रिमेंबरनेस बड़ी जरूरी है जी। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में कहते हैं ना, यादगारी रखी है ने सब दी। खुदा ने हर चीज की क्या रखी है, या शायरबानी जो होती है, ये क्या है, यादगारी है। मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया कर। तो रिमेंबरेंस, यादगारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है खुदा के नजदीक। खुदा याद रखता है, याद करवाता है। पादरी हर संडे लोगों को क्या करवाते हैं, वो याद तो करवाते हैं हर संडे। मन्नी ना मन्नी आपकी मर्जी है, पासबान अपना काम क्या करेगा, कन्वेंशन इनकाद कराना, रिवाइव कराना, ये क्या है, इट्स अ कॉल ऑफ रिमेंबरेंस, याद करो। 18 साल पहले हमने क्या किया था, 15-20 साल पहले क्या किया था, 50 साल पहले हमने क्या किया, रिमेंबर। स्टार्ट तूने कैसे किया था, रिमेंबर। सो ये बड़ा जरूरी है कि रिमेंबर, याद करने को कहा गया है। सेकंड R फॉर रिपेंट, याद तो कर लेकिन उसके बाद क्या कर, तौबा कर, रिपेंट। इट्स अ कॉल। रिवाइव अगर होना है तो फिर याद करने के साथ एहसास, अवेकनिंग जो है ये बड़ी जरूरी है। एहसास होना कि जी गलती कहां हो गई है, कहां से हम गिरे हैं, क्या भूल गए हैं, क्या हमसे सरजद नहीं हो रहा। रिमेंबर एंड देन लीड टू रिपेंट, तौबा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी क्या थी, क्योंकि आसमान की बादशाही, यीशु मसीह की मुनादी क्या थी,
सेम, तौबा करो क्योंकि बाकी सारी तालीम, मुनादी का मतलब है पब्लिक प्रीचिंग, प्रोक्लेमेशन। जो पब्लिक प्रोक्लेमेशन था वो यही था बस कि तौबा करो, बादशाही क्या आ गई है, नजदीक है, तुम्हारे दरमियान है। बाकी 3.5 साल तक यीशु मसीह क्या देते रहे हैं, तालीम। आप देखेंगे यही वजह है कि आज के दौर में हमारे जितने भी बाकी लोग आपको मिलेंगे और जो ज्यादातर जो मिलेंगे आपको सेंसेशनलिज्म की तरफ जो जाएंगे ज्यादा, ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग, वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का एक पहलू बयान करते हैं। जीसस क्राइस्ट प्राइमरीली वाज अ टीचर, हीलर बाद में है वो। आप जितने यीशु मसीह के तारुफ उठाकर देख लें खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के बारे में, मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील, क्या लिखा है, वो शहर शहर गांव गांव मौज से करता फिरा। पहले ये आता है, तालीम देता फिरा। ही वाज अ टीचर। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए हैं उसे क्या बुलाकर पुकारते थे, रैबाई, टीचर, उस्ताद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी मिनिस्ट्री है वो क्या है, टीचिंग, इरशाद आजम। बस तुम जाओ सब लोगों को इन बातों की क्या दो, तालीम दो, टीचिंग, साउंड डॉक्ट्रिन। रसूलों के माल की जो कलीसिया खड़ी हुई है वो क्या उनकी प्रैक्टिस थी, और वो हर रोज क्या करते, घरों में जमा होते और किस चीज में मशगूल रहे, पहली चीज क्या है, रसूलों से तालीम पाने में। पौलुस रसूल तिमोथियस को खत लिखते हैं, अपनी और अपनी तालीम की क्या कर, खबरदारी कर, बी गार्ड, तेरी तालीम, तेरी डॉक्ट्रिन, तेरी थियोलॉजी मिक्स ना होने पाए। तो जो कॉल है कलीसिया को, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, ये जो कलीसियाओं के अंदर बिगाड़ है अंदर से, ये कहां से आता है, झूठे उस्तादों, गलत तालीम, अनपढ़ और जाहिल टीचरों की तरफ से। सो साउंड थियोलॉजी, साउंड टीचिंग, दैट इज द प्राइमरी फाउंडेशन ऑफ एनी चर्च, एनी कॉन्ग्रीगेशन। सादा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सादा सा एग्जांपल मेरे ज़हन में आ गया। पारी साहब इधर आए जरा, इफ्सियों 4 बाब निकालें जरा, 4:11 सामने है। कोई भी पब्लिक में से निकाल लें, चारों 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है इफ्सस की कलीसिया में। 4:11। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर, जी, क्या बनाया नंबर 1, रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। जी, आपने बताना है जी, पर से बाइबल रख दो। पहली मिनिस्ट्री क्या नाम है जी, क्या दिया जी, रसूल। पर्स पढ़ो, पेपर खींचो, खींचो। रसूल की खिदमत से बंदा गायब। दूसरा कौन सा जी, नबी, खींचो जी, निकल गया। अब कौन है, मुबश्शिर, खींचो जी, फिर निकल गया, ठीक है जी। चरवाहा, खींचो, गया। आगे कौन है, कौन खींच के भाव, कौन निकल गया, टीचर, उस्ताद। सो गलत तालीम, गलत पादरी, गलत चर्च, गलत डॉक्ट्राइन, इनसे बचें। चर्च हर दौर में ये भुगतता आया है और आज भी लोग भुगत रहे हैं। थैंक यू साहब, बैठे। सो मेरे जीजो क्या कहे जी, रिमेंबर, और फिर क्या कर, रिपेंट एंड देन इट विल लीड यू टू रिवाइव। रिवाइवल ऐसे नहीं आ जाएगा सिर्फ चर्च आने से, इतवार के इतवार हदिये डालने से, देगा देना देगा से। मैंने एक और कहानी याद आ गई, तो नहीं ना कर दे लोग। एक बंदा ही, ਉਹਨੂੰ बड़ा शौक सी दरख्तां ने चढ़न का, चाह शौक चढ़ गया लम्बे दरख्त के उत्ते, उत्तों उतरन लगा, डर गया। वो कह हड्डी पसीने करवा गया, गिर ना जाऊं, मर ना जाऊं। कहता है खुदावंदा चढ़ ते गया बड़ी मुश्किल, तो मैनू एक बार थले ला दे, 15 देगां तेरे नां दियां ला देंगे। ठीक है जी, ओके जी। हल्का हल्का नीचे सरका, थोड़ा सा आया, नीचे आया, थोड़ा सा हिम्मत बंदी, थोड़ा जिहा नेड़े आके वेख्या, हाले भी डर लगे। कहंदा खुदावंदा तेरे खजाने च काहदी कमी, तू देगा 15 देगा, तू की करनियां ने, ठीक है। 10 देगा ने डील कर लेने, मैं सही सलामत थले उतर गया, 10 देगा तेरे नां दियां चाड़ देंगे, ठीक है जी। और हिम्मत बंदी, थोड़ा और थोड़ा सा क्या हुआ, नीचे आया,
ठीक है, अल्टीमेटली फिर चढ़ के देखता है कि अब मैं गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा। अब जब देखा ना कि सेफ जोन में है तो नीचे छलांग लगाई तो गिर पड़ा। जब गिर पड़ा अपने आप को देखा ठीक हूं तो कहता रब्बा माफ करी, कपड़े कपड़े चढ़ कहता ना देगा देने तो ना चढ़ने, ठीक है, तो ना चढ़ने तो ना देगा देने। तो बड़े लोग आपको इसके साथ मिलेंगे, मुसीबत में किसी होंगे, किसी चैलेंज का सामना होगा, फिर ते दिन रात गिरजा, फिर नवे नवे फकीर नहीं दोपहरी भी धुआं घर बलदा हुंदा, प्रेयर मीटिंगां ते दुआयां मीटिंगां ते हालेलुया ते गिरजा ते जेड़े जिथे नहीं जाना उत्थे ही पहुंचे हुंदे ने, घरां झगड़े हो रहे हुंदे ने। वो साडा घर बिगड़ गया, बीबी कोई सैमीनार नहीं छड्डदी, कोई कन्वेंशन नहीं छड्डदी। Repent and that will lead to revival. स्मुरना को क्या कहा गया है? स्मुरना को कहा गया जी वफादार रह तो मैं तुझे क्या करूंगा जिंदगी का, तो वफादार रह, वफादारी मांगी गई है। उससे ये नहीं कहा गया कि तू तौबा कर, क्योंकि स्मुरना के अंदर यीशु मसीह को शिकायत कोई नहीं है, सिर्फ उसको एक कमांड दिया गया, तो क्या कहा? जमा रह, खड़ा रह, ठीक है जी। परगमन को क्या कहा गया है? तू तौबा कर, अगेन रिपेंट। अगर तौबा नहीं करेगा यू आर एट द रिस्क फॉर जजमेंट, तेरी अदालत शुरू हो जाएगी। थियात्रा को क्या कहा गया है? रिपेंट अगेन, तौबा कर, एंड रिमेन व्हाट यू हैव, जो तेरे पास हो उसे क्या रहे, थामे रहे, वो भी ना चला जाए। बड़े कलीसिया के लोग ने फड्डा कलीसिया के घर ना होएगा, किसी के मैंबर नाल होएगा, ते अपना लड़ाई किहदे नाल पा देंगे? चर्च नाल। अच्छा बची है जिहदा आ मैं गिरजे नहीं जाना। कुछ लोग हैं वो कहेंगे पारी साहब मजा नहीं आया, भाई तुम मजा लेना आते हो गिरजे, ये बात उसके नाम की है। The object of the worship is not congregation. Object of the worship is God. आप उससे मिलने उसके सामने आते हैं। तो ये जो आइडिया है, जो तेरे पास है क्या रहा है उसे, जो खिदमतें आपको मिली हैं, प्रेयर मीटिंग की खिदमत मिली है आपको, इंटरसेसरी की मिली है, वर्शिप की मिली है, मीटिंग लीड करने की मिली है, क्वायर के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जो खिदमत आपको मिली है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उसे क्या रहा है? हमें उसे जानना दे हाथ से, ठीक है। रिमेन What you have. सरदीस की कलीसिया को क्या कहा गया है? तौबा कर, लेकिन तौबा के साथ जागता भी रहे। अभी हमने गीत गाया ना, सुतियां कुवारियां अंगरू, क्या था जी वो? सुस्त कुवारियां, ठीक है, सुस्त कुवारियां ना बने, क्या रहे? बी विजिलेंट, जागता रहे। फिलदिल्फिया की कलीसिया को क्या कहा है? कायम रहे, मजबूत रहे। लुदीकिया को अगेन रिपेंट एंड रिवाइव। इन सातों कलीसियाओं के अंदर जो, अगर मैं सिर्फ तीन चीजों को अगर मैं हाईलाइट करूं जो बार बार सामने आ रही है, वो क्या है? रिमेंबर, याद कर, ख्याल कर। नंबर 2 क्या है? रिपेंट, तौबा। तौबा की कॉल है जी, कलीसिया पाकिस्तान के लिए भी, मेरे लिए भी, हर दौर की कलीसिया के लिए कॉल क्या है? तौबा कर, रिपेंट, एंड देन इट विल रिवाइव यू। सो मेरे जीजो, रिवॉर्ड की लिस्ट आगे मौजूद है। आखिरी नुक्ता है ये, जो फतह पाएगा दूसरे बाब की 7वीं आयत, आई विल ग्रांट द ईट ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी के दरख्त से फल खाने को दूंगा। खुदा के पैराडाइज में है, फिरदौस में है। स्मुरना, मैं तुझे जिंदगी का क्या दूंगा? ताज दूंगा। परगमन, जो फतह पाए गालिब आए, मैं उसे पोशीदा मन और सफेद पत्थर दूंगा। उसका नाम किताब हयात में क्या होगा? लिखा होगा। थियात्रा, जो गालिब आए, आखिर तक कायम रहे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। अथॉरिटी, ज़बूर नंबर 2, मुझसे मांग और मैं कौमें तुझे क्या करूंगा? तुझे दूंगा। अथॉरिटी, डोमिनियन खुदा का। सरदीस, जो गालिब आए उसको सफेद जामे दिए जाएंगे। फिलदिल्फिया, जो गालिब आए वो खुदावंद की हैकल में सतून की मानद खड़ा होगा। टेंपल, आप सोचते हो ना, कभी कभी लोग सोचते हैं कि इत्थों जानते बाद उत्ते की करांगे, सोचते हैं ना कभी कभी। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, ठीक है। सबसे पहला काम जो आज जारी रहेगा, जब मैं आज को पिक्चर दिखाने लगा हूं, वो आज की शाम की पिक्चर है। कलाम में लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखा? बर्रे के तख्त के सामने हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत, अहले जुबान में से वो क्या कर रहे हैं? प्रस्तश कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं।
तो पहली चीज जो आपकी मश्क है जमीन पर इबादत करने की, दैट्स प्रिपरेशन फॉर योर इटर्निटी। ये आपकी तैयारी है अब्दियत में जाने की। अपने आप को अब्दियत में जाने के लिए तैयार करें। फिलडेल्फिया की कलीसिया को क्या लिखा गया है? मैं तुझे खुदा की हैकल में क्या बनाऊंगा? एक सतून, टेंपल, द पिलर इन गॉड्स टेंपल। मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा नाम हमेशा क्या रखूंगा? याद रखूंगा। लुदीकिया की कलीसिया को कहा गया है कि जो गालिब आएगा, अच्छा ये गालिब ये बार बार रिपीट हुआ है, गालिब आना। गालिब से क्या मुराद है? गलबा पाना, कॉन्कर। एक होता है फतह हासिल करना, फतह का मतलब है यू विन द बैटल। आपने एक मैदान क्या कर लिया है? मार लिया है, लेकिन उस टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल रखना जो है, दैट इज कॉन्करिंग। जो गालिब आए, जो उस पर क्या रखे, जो कंट्रोल में रखे, उसका इख्तियार उस पर क्या रहे, कायम रहे। तो गालिब आने का ये नहीं है कि एक बैटल जीत ली तो बाद छाला मारने शुरू कर देती हैं, फिर मीना ना गिरजे गए, ना बाइबल पढ़ी, ना कलाम पढ़ा, कुछ भी नहीं। नो, गालिब आए, कंटिन्यूस टेंस है ये। और वो क्या मतलब है इसका? कि यू विल कीप कंट्रोल व्हाट यू हैव। वन हु कॉन्कर, तीसरे बाब की 21 आयत, I will grant him to sit with me on my throne, मेरे साथ तख्त पर बैठेगा। ये सवाल किया था ना शागिर्दों ने, खुदावन असी मां प्यो भैन भरा घर बार छड़ के की टुर पे हैं, सानू की मिलेगा? क्या जवाब आया? कि तुम मेरे साथ 12 तख्तों पर बैठ कर क्या करोगे? इंसाफ करोगे। तो रिवॉर्ड, इंसेंटिव्स बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन, हमारी तवक्को से कहीं बढ़कर है। सो मेरे अजीजों, डॉक्टर जॉन स्टॉट का नाम अगर आपने सुना है, पिछली सदी के बड़े मशहूर ब्रिटिश मुबल्लिग थे, राइटर, ऑथर, स्कॉलर, थियोलॉजियन। अपने बुक बेसिक क्रिश्चियनिटी में वो इन कलीसियाओं का जो समरी है, जो पैगाम है, वो भी 3 लफ्जों में पेश करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी, टू सिनफुल चर्च, जो गुनाहगार कलीसिया, याद रखिएगा, कलीसिया की या क्रिश्चियनिटी की एक जो बड़ी क्या कहना चाहिए तशरीह है, हु इज अ क्रिश्चियन। चलें इस पे आज कंक्लूड करते हैं, आज का पहला सरमन खत्म करते हैं। मसीह कौन है जी? हु इज अ क्रिश्चियन आपके ख्याल में? अगर कोई पूछे जी हु इज क्रिश्चियन, मसीह कौन है, क्या जवाब देंगे? क्या ख्याल है? बोले कोई भी, एनीथिंग। यहां सही गलत नहीं है, यहां सिर्फ एक्सप्रेशन है, ठीक है? कौन है मसीह? हु इज अ क्रिश्चियन? ओके जी, क्राइस्ट फॉलोअर, ठीक है। एनीबडी एल्स? हाँ जी, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को मानने वाले। हाँ जी, पड़ोसी से मोहब्बत रखने वाला क्रिश्चियन है, ठीक है। ऑल आर फाइन, ठीक है। अब मैं आपको एक थियोलॉजियन की स्टेटमेंट देता हूं जी, ठीक है। He was a Presbyterian theologian, Karl Barth. Karl Barth कहते हैं जी, a Christian is a disturbed sinner. मसीह कौन है? क्या तर्जमा सादा था? उर्दू तर्जमा कर रहा हो। परेशान गुनहगार है मसीह। कार्ल बार्थ क्या कहते हैं, कौन है? परेशान भी है वो असल में कौन है? गुनहगार वो भी, लेकिन वो कौन सा गुनहगार है? वो डिस्टर्ब सिनर। क्यों? क्योंकि उससे अगर कोई गुनाह या गलती होती है तो वो सीना तान के नहीं कहता हाँ जी मैं कीता रे, कर लो जो करना है। वो क्या कहता है? खुदा का पाक रूह उसे डिस्टर्ब कर देता है और वो कन्फेशन की तरफ जाता है, रिपेंट की तरफ जाता है, एंड दैट्स वेयर ही बिकम अगेन अडॉप्टेड क्रिश्चियन, खुदा का बेटा और बेटी बन जाता है, ठीक है जी। ज़ीब्रा क्रॉसिंग हम अक्सर देखते हैं, पाकिस्तान में ज़ीब्रा क्रॉसिंग कोई फॉलो नहीं करता। मेरे को एक बार मोटर बाइक से मैं एक सिग्नल पर खलो गया, रेड सिग्नल होया, मैं खलो गया, किसी और मोहरे जो होगा नंग मैं भी जाना हाँ, उधर मैं खलो गया तो मेरे नाल पीछे, आपको पता ना हम तो भीड़ जा एक बंदा खलो जाए तो सारी पब्लिक की हो जाएगी, खलो रहेगी, ठीक है। पब्लिक से मुझे याद आया एक जगह तो ना बड़ी भीड़ जमा हुई, भीड़ जमा लोग बैठे, बड़ा मजमा पिया, एक बंदे ने जान का राह ना लभे, उन्होंने राह लभ के अब तजस्सुस खींचे जा रहा है कि हूँ कि डै गया, मैं भी जाके वेखा, मैं भी जाके वेखा। अल्टीमेटली उससे तरकीब सूझी, वो आंदा भरा जाओ, मरने वाला मेरा आपा सी, भरा जाओ मैनू जान दो। लोग भरा गए, अगे जाके फिर खोता मरिया पिया।
सो लोग ऐसे भी तजस्सुस का शिकार होते हैं, बगैर जाने पूछो की बात नहीं, ठीक है, तजस्सुस का शिकार हो गया। ज़ीब्रा से मुझे याद है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। क्रिश्चियंस जो हैं दे आर लाइक अ ज़ीब्रा, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। वी आर हाइब्रिड। हाइब्रिड गाड़ियां आ गई है ना, जो इलेक्ट्रिक पे भी चल रही है और पेट्रोल पे भी चल रही है, ठीक है। तो हाइब्रिड, हमसे खताएं भी होती हैं, हमसे गुनाह भी होते हैं। दैट्स व्हाई व्हेन एवर वी कम टू द लॉर्ड्स टेबल, जो टेबल लगती है, क्या वो रास्तबाज लोगों के लिए है? यीशु मसीह की जो टेबल है, होली कम्युनियन, वो किन के लिए है? वो रास्तबाज लोगों के लिए है? नो, दैट इज फॉर सिनर्स हु एक्सेप्ट कि हम क्या हैं, हम गुनाहगार हैं, हमें खुदा के फजल की क्या है जरूरत है, और वो फजल मेरे कामों से नहीं मिल सकता, वो मुझे यीशु मसीह की सलीब के वसीले से सिर्फ मिल सकता है। यही वजह है कि जब पादरी साहबान होली कम्युनियन सर्व के जी अपने गुनाहों का क्या करें, इकरार करें, तो आप कहेंगे जी मैं तो क्रिसिया हूं, मैं तो मसीह हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं कदे तौबा करा, मुझे तौबा की क्या जरूरत है? ठीक है, आजकल तो इंडिया वाले भी गाने बनाने शुरू कर देने, तौबा करा देने लोगों को। तो तौबा तो हर जगह, गालिब का शेर है, मेरी तौबा है वह तौबा जिसे हाजत है तौबा की, ऐसी ऐसी तौबा है। तो तौबा करना बहुत जरूरी है जी। तो जॉन स्टॉट क्या कहते हैं जी, टू अ सिनफुल चर्च ही सेज आई नो ऑफ योर सिन, मुझे तेरे गुनाहों का पता है, क्या कर, तौबा कर। टू अ डाउटफुल चर्च, जो शकी चर्च है, गलत तालीम का शिकार है, परेशान चर्च है, उसे वो क्या कहते हैं, आई नो ऑफ योर डाउट, बिलीव, ईमान रख। अ फियरफुल चर्च, स्मुरना की कलीसिया, पाकिस्तान की कलीसिया, ब्लास्फेमी का डर है, तौहीन का डर है, परेशानी का डर है, गुर्बत का डर है, बहुत सारे डर हैं। उस कलीसिया से यीशु मसीह क्या कहते हैं, आई नो ऑफ योर फियर, इंड्योर, बर्दाश्त कर, सब्र कर, आई नो, क्योंकि उसने भी सलीब का दुख सहकर फर्माबरदारी सीखी है। सफरिंग चर्च इज अ ग्लोरियस चर्च। तो मेरे जीजो, आज की शाम अगर हमें रिवाइवल लेकर आना है, तो रिवाइवल का आगाज, अगर मैं रिवर्स में जाऊं, तो रिवाइवल टारगेट हमारा क्या है, क्या हो, रिवाइव हो, बहाल हो, बेदार हो जाएं। रिवाइव के लिए पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स में तौबा। और तौबा से पहले क्या है, रिमेंबर, याद कर, पहली सी मोहब्बत, पहले से काम, पहले से खिदमत, कहां से तूने शुरू किया था, कहां पर तू आकर रुक गया है, क्या कहा गया, उसको ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। ठीक है जी, तो किस पीक पे था कलीसिया पाकिस्तान, तो किस पीक पर थी कलीसिया पाकिस्तान, तेरा कंट्रीब्यूशन क्या था दुनिया में कलीसिया पाकिस्तान, तूने कलीसिया के अंदर क्या क्या लोगों को दिया है, लोगों ने कितनी कितनी तरक्कियां की हैं, तो ख्याल कर और उस दोबारा से क्या कर, अपने आप को बहाल कर। तो मेरी दुआ है मेरे चीजों कि जब खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया पाकिस्तान को खत लिखेगा, और कलीसिया पाकिस्तान भी गाए चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है नहीं, तो वो चिट्ठी आने के बाद जो अबदी वतन है जिसमें हम सब ने जाना है, वहां से जब खत आए और यीशु मसीह अगर खत लिखें, मेरा और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या हम शर्मिंदा होंगे या हम शादमान होंगे? क्या हम उससे मिलने के लिए बेताब होंगे या आदम और हवा की तरह छुपने की कोशिश करेंगे? हम दुखों में जलाल के लिए उसका सामना कैसा करेंगे? कदूसियत, वो कदूस है, पाक है, क्या मेरी पाकीज़गी इस लेवल की है कि मेरे साथ वो शराकत कर सके, मेरे साथ बैठकर खाना खा सके? आप नीम गर्म को, अपने आप को कैसे पेश करेंगे? आप फुल कमिटमेंट तक, फुल पोटेंशियल तक कैसे जा सकते हैं? ना तो सर्द है और ना तू तो गर्म नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, तुझे अपने मुंह से निकाल दूंगा। खतरा क्या है जी, चिरागदान को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। मैं जब लाइट है तेरी, उसको क्या कर दूंगा, तेरी लाइट मैं किसी और को दे दूंगा। मैं जो कि मिशन का तालिब इल्म हूं, मैं मिशन पढ़ाता हूं दुनिया के अंदर,
पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी कोलैप्स्ड। लोग समझते हैं कि अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड क्रिश्चियन कंट्रीज है। नो, दे आर नॉट क्रिश्चियंस। सेकुलर्स तो हैं, दे आर फाउंडेड ऑन द बेस ऑफ द क्रिश्चियन प्रिंसिपल, जूडियो क्रिश्चियन प्रिंसिपल पे तो खड़े हुए हैं, लेकिन आज का माशरा क्रिश्चियन माशरा नहीं है वहां का। क्या हुआ है? मिसियोलॉजिस्ट, मिशन के तालिब इल्म इस बात से वाकिफ हैं कि जो मेंटल, जो आज से 100 साल पहले जो शमा, जो मशाल वेस्टर्न कलीसिया के हाथ में थी, वो चेंज हो गई है। अब वो कहां चली गई है? अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका। आज के दौर के इंटरनेशनल मुबल्लिग, प्रीचर, टीचर आपको गोरी चमड़ी वाले कम मिलेंगे, आपको अमेरिकन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपको ज्यादा मुनादी करने वाले पादरी मेरी स्किन के या ब्लैक मिलेंगे। तो खुदा ने 300 सालों के अंदर ही उनका क्षमादान वहां से क्या कर दिया? बता दिया, इट्स मूव्ड। तो अगर हमारे पास क्षमादान है, सितारे हैं, लाइट है, आर वी स्प्रेडिंग दैट? बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आइए अपने सरों को झुकाएं चंद लम्हात के लिए। और अगर खुदा का पाक रूह आपको तौबा की तरफ माइल करता है, कि बात याद दिलाता है, दिस इज द टाइम टू रिपेंट, तौबा करें। ज़बूर 51 को हम इसी तरह आंखें बंद करके तौबा के ज़बूर पर गाएंगे। पंजाबी ज़बूर 51 फजल नाल पहली आयत गाएंगे सिर्फ। बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू ही है उते मेरे। आइए अपने कदमों पर खड़े हों। दिस इज अ मोमेंट एंड अ टाइम। अगर हमें वाकई रिवाइवल चाहिए, रिपेंट एंड रिमेंबर, याद रखिएगा। खुदावंद से कहें, खुदावंद